بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ روشن خان غصے میں تھا، شاید تم ان میں پھوٹ ڈلوانے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ کمرے میں بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ایک موم بتی روشن کرنے کے بعد سلطان شاہ نے کہا، لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، انہیں تو نقصان پہنچے گا۔ غزالہ نے ہنس کر کہا، اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کا باقی حصہ یکجا رہ کر ہی بسر کیا جائے تاکہ ہم ایک دوسرے کی دیکھ بھال کر سکیں۔ عورتوں کو بستر دے دیا گیا۔ سلطان شاہ فرش پر کمبل بچھا کر دراز ہو گیا۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے برابر والے کمرے سے کمبل، تکیے اور بستر کی چادر تک وہیں لے آیا تھا۔ میرے حصے میں کمرے کا واحد صوفہ آیا جو لمبائی میں میرے قد سے چھوٹا ہونے کے باوجود آرام دہ تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ باتیں کرتے ہوئے کس وقت میری آنکھ لگی۔ ہاں، اتنا ضرور یاد ہے کہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے تسلسل کے بعد فائرنگ تھم گئی تھی۔ بس وقفے وقفے سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ صبح 10 بجے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا گیا کیونکہ 12 بجے کوسٹر کو غزنی ہوٹل سے روانہ ہونا تھا۔ میں ہاتھ منہ دھو کر تیار ہوا تو سلطان شاہ نے خوشخبری سنائی کہ ایلن اور پیٹر کے چہروں کا حال بگڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر شدید ضربات کے نمایاں نشان موجود تھے، جبکہ ایلن کے چہرے پر ایک زخم بھی موجود تھا۔ اپنی مزاج پرسی کرنے والوں کو وہ بتاتے پھر رہے تھے کہ رات کے اندھیرے میں وہ غلط فہمی کی بنا پر آپس میں لڑ پڑے تھے۔ ایک دوسرے کی خاصی ٹھکائی کرنے کے بعد نیند کا خمار دور ہوا تو وہ دونوں اس حال کو پہنچ چکے تھے کہ شاید دوسروں نے اس بے سروپا کہانی پر یقین کر لیا ہو، لیکن ہم سب کو پورا یقین تھا کہ پچھلی رات روشن خان ان لوگوں سے لڑ پڑا ہوگا اور اسی نے ان دونوں کی مرمت کی ہوگی۔ جسمانی طور پر وہ ان دونوں سے بہت بھاری اور توانا تھا۔ دن کے اجالے میں خوف و دہشت اور تشویش کے اثرات بڑی حد تک معدوم ہو چکے تھے۔ ہوٹل میں معمول کی سرگرمیاں جاری تھیں اور پچھلی رات کے واقعات ایک بھیانک خواب کی صورت میں یاد رہ گئے تھے۔ مجھے بے اختیار وہ کہاوتیں یاد آنے لگی جن میں سورج کو امید، زندگی اور خوشحالی کا پیامبر قرار دیا جاتا ہے۔ رات کا اندھیرا جہاں لاکھوں جرائم اور گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، وہیں ڈر، خوف اور دہشت کے ان بھیانک تخیلات کو بھی جنم دیتا ہے جو کمزور انسانوں کی شخصیت کو بری طرح تباہ کر کے مسخ کر دیتا ہے۔ اور جب رات کا اندھیرا اجالے کی باہوں میں سسک کر دم توڑنے لگتا ہے تو بڑھتے ہوئے اجالے کے ساتھ رات کے لرزہ خیز تصورات خود بخود معدوم ہونے لگتے ہیں، اور کمزور ترین انسانوں میں بھی حالات سے لڑ مرنے اور زندہ رہنے کا کچھ نہ کچھ حوصلہ بیدار ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ ہم آخری بار اپنے کمرے کا ناقدانہ جائزہ لے کر باہر نکل آئے۔ اس وقت کوسٹر کے تقریباً سارے ہی مسافر حال میں موجود تھے۔ انہی کے درمیان ایلن اور پیٹر بھی نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر مضحکہ خیز ورم اور نیل کے نشانات نمایاں تھے۔ ایلن کے بائیں رخسار کی ہڈی پر زخم نظر آ رہا تھا جس میں خون جمع ہوا تھا۔ میں نے دور ہی سے ان کی طرف ہاتھ لہرایا تو ایلن کے متورم ہونٹ عجیب انداز میں پھیل گئے، شاید وہ اس کی بدلی ہوئی جوابی مسکراہٹ کا نیا انداز تھا۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ اس مار داڑ میں روشن خان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہوگا۔ ناشتہ آنے کے بعد میں نے ویرا سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ہمیں وہ تماشا دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ تم ہر بات اتنے وثوق سے کہہ دیتے ہو جیسے تمہارے پاس کوئی تلسمی آنکھ ہے جو وقت اور ماحول کے دبیز پردوں کے اس پار بھی دیکھ سکتی ہے۔ ویرا نے میرے پر اعتماد لہجے سے چڑ کر کہا، روشن خان لمبا چوڑا اور ان دونوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسے ہاتھ بھی نہ لگا پائے ہو۔ دیکھتی جاؤ، میں نے اسے سلگانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم بھول رہی ہو کہ میرے پاس سلور آئی ہے جو کسی تلسمی آنکھ سے کم نہیں ہے۔ روشن خان یہاں نظر نہیں آ رہا لیکن کوسٹر میں موجود ہوگا۔ تم دیکھ لینا، میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوگا۔ مجھے حیرت ہے، بعض اوقات تم میری ضد میں آ کر سامنے کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتی
देती हो? मुझे तुम्हारी क्या सहाराइयों से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। और अब तुम इकरार कर रहे हो कि सिल्वर आई तुम्हारे पास है। जब मैंने इसकी वापसी का मुतालबा किया था तो तुम आप मुकर गए थे। इस वक्त की बात और थी, मैंने हंसकर कहा। तुम मेरी दोस्त होने के बजाय जिमी लाइट की नुमाइंदगी कर रही थी, फिर भी मैंने 2 में से 1 सिल्वर आई तुम्हें लौटा दी थी। मेरे हिसाब से तुम इस वक्त 2 सिल्वर आईज पर काबूज हो, जबकि मेरे पास सिर्फ 1 सिल्वर आई है जो मैंने किसी आड़े वक्त के लिए रखी हुई है। वो वक्त गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। वीरा ने उर्दू के एक मुस्तनद मुहावरे पर बरजस्ता तसर्रुफ करके मुझे हैरान कर दिया। अब तुम सिल्वर आई इस्तेमाल करके आई मैन का रूप नहीं धार सकते। तुम्हारी ये हरकतें इसी वक्त कामयाब थी जब तुम गुमनाम थे। अब शी में तुम शैतान की तरह मशहूर हो चुके हो। कामयाबी और नाकामी का दारोमदार हालात पर है। जब तक सिल्वर आई मेरे कब्जे में है, मैं आई मैन बनने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। तुम मेरा ये हक नहीं छीन सकती, मैंने बेपरवाही से कहा। बार बार सिल्वर आई का जिक्र करके मेरा खून न जलाओ। वीरा बिगड़ के बोली, शिंगारा वैली के सरदार सबकतुल्ला ने बहुत सोच समझ कर तुमको अजीम शान झूठे का खिताब दिया था। अगर मैंने इस वक्त तुम्हारे झूठ पर यकीन न किया होता तो आज तुमको बातें बनाने का मौका नहीं मिल सकता था। छोड़ो, अब पुरानी बातें याद करके अपना खून न जलाओ। मैंने इसके शाने पर हाथ मारकर कहा। सांप गुजर जाने के बाद लकीर को पीटने से कुछ हासिल नहीं होता, अपने ही बाजू शैल होने लगते हैं। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं किसी से कुछ कहे बगैर अपनी जगह छोड़कर इस मेज की तरफ चल दिया जिस पर एलन और पीटर बैठे हुए थे। वो दोनों हम लोगों से गाफिल नहीं थे, इसलिए वो मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए। मैं वहां पहुंचते ही एक खाली कुर्सी लेकर पीटर के बराबर बैठ गया और मुतासफाना अंदाज में इसके चेहरे का जायजा लेने लगा। इसका दाहिना जबड़ा काफी वरमतदा था, दाहिनी आंख का निचला हिस्सा भी सूजकर नीला हो रहा था। सूजन की वजह से इसकी दाहिनी आंख तकरीबन बंद होकर रह गई थी। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी काबिले रहम हालत देखकर इस मरदूद पर सख्त गुस्सा आ रहा है। तुम किस मरदूद की बात कर रहे हो? मेरी बात सुनते ही वो भड़क उठा। हम दोनों गलत फहमी में एक दूसरे से लड़ पड़े थे। सुबह से ये बात दोहरा कर मेरे जबड़ों में दर्द होने लगा है। मैंने तफहीमी अंदाज में अपने सर को जुम्बश देते हुए कहा, होना ही चाहिए, तुम्हारे जबड़े पर भी सख्त चोटें आई है। मेरा ख्याल है कि वो लोगों में ख्वाह मुख्वाह शेखियां बिगाड़ता फिर रहा है। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बरस पड़ा। तुम बार बार किसका जिक्र कर रहे हो? वो हमारे बारे में क्या बकवास करता फिर रहा है? पीटर, खोपड़ी ठंडी रखो। एलन ने सर्द लहजे में इसे अंग्रेजी में तनबीह की। शोर मचाकर बिला वजह खुद को तमाशा न बनाओ, बल्कि ये जानने की कोशिश करो कि डैनी क्या कह रहा है। मेरा नाम डैनी नहीं तनवीर है। मैंने इस बार अंग्रेजी ही में एहतजाज किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बैठो बैठो। पीटर मेरा हाथ थाम कर इस्तरारी लहजे में बोला, मुझे ये बताओ कि तुम किसकी बात कर रहे थे? रोशन खान कहता फिर रहा है कि इसने तुम दोनों की ठिकाई की है। मैंने सादगी से कह डाला, वो पक्का बास्टर्ड है। एलन दांत पीस कर गुर्राया। ये दुरुस्त है कि इसके और हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा हो गई थी, लेकिन हमने इसे इस बात की तशहीर से मना किया था। मालूम होता है कि हरजा सराई के शौक में वो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सका। इस कुतिया के पिल्ले ने तुमसे और क्या कहा है? पीटर ने गुस्से से मुठियां भींचकर पूछा। इसने मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने इनसे एतराफ कराते ही फुर्ती से बात बदल दी। मैं सुनी सुनाई बात दोहरा रहा था। 2 बहरे तुम्हारे और रोशन खान के झगड़े की बातें कर रहे थे, वो मेरे कान में पड़ गई थी। पीटर का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से से कांपती हुई आवाज में बोला, मैं रोशन खान को बताऊंगा कि तुम इस पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते फिर रहे हो। वो खुद ही तुमसे निबट लेगा। वो बहुत गुस्सील और ताकतवर आदमी है, तुम्हारी हड्डियां तोड़कर रख देगा। इसके गुस्से और ताकत का अंदाजा तो तुम्हारी बिगड़ी हुई सूरतों से हो रहा है। मैंने एहतजाजिया अंदाज में कहा, लेकिन तुम इसे मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं इसे कह दूंगा कि कैसेट रिकॉर्डर पर होने वाले झगड़े के बारे में तुमने खुद ही मुझे बताया था और अब रोशन खान से बदला लेने के लिए इसे हम लोगों से लड़वाना चाहते हो। मेरी जुबान से कैसेट रिकॉर्डर का नाम सुनते ही वो यूं उछल पड़े जैसे इन्हें कोई बरकी झटका लगा हो। फिर एलन ने मेरी तरफ झुककर खुशामदाना लहजे में पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें कैसेट रिकॉर्डर के बारे में किसने बताया? बेसूद है, मैंने मुंह बनाकर कहा। अगर मैं कहूं कि मैंने ये बात भी इन बहरों से सुनी थी तो तुम एतबार नहीं करोगे। कैसेट रिकॉर्डर का मामला बहुत खुफिया था। वो बोला, इसका हवाला देकर तुमने साबित कर दिया है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। रोशन खान ने यकीनन हमसे बदअहदी की है। क्या तुम इन बैरों को शिनाख्त कर सकते हो जो इस बारे में बातें कर रहे थे? मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैंने संजीदगी से कहा। तुम इन्हें पहचान भी लो तो क्या कर लोगे? वो सोच
सोच में पड़ गया और कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, तुम ठीक कह रहे हो, क्या तुम्हें इस कैसेट रिकॉर्डर की नौयत के बारे में कोई बात मालूम हुई थी? मैंने सख्ती से इनकार में सर हिला दिया। मेरा अंदाजा था कि रोशन खान का कोई कीमती कैसेट रिकॉर्डर चोरी हो गया है जिसके बारे में वो तुम दोनों पर शुबा कर रहा है। जंग से उकताए हुए अफगान गाने सुनने के बहुत शौकीन होते हैं। मेरी तरफ से ला इल्मी के इजहार पर इन दोनों के चेहरों से इत्मीनान झलकने लगा। फिर एलन बोला, रात को मार कुटाई के बाद हमने इसे अपने थैलों की तलाशी तक दे डाली थी और हमारे दरमियान समझौता हो गया था कि बाहमी इख्तलाफ की कहानी जुबान पर नहीं लाएंगे, मगर ये अफगान बिल्कुल नाकाबिले इत्माद होते हैं। देख लो कि इसने बात फैला ही दी। अब तुम इस बात का चर्चा न करना। हमारे दरमियान दोबारा कोई बदमज़गी पैदा हुई तो वो तूरखम के बजाय चीखा सराय की तरफ चल देगा और हमें भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। मुसाफिर भी अपने वक्त की बर्बादी पर हंगामा खड़ा कर देंगे। तुम फिक्र न करो, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा। हमें भी सरहद पार पहुंचने की उजलत है, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा, लेकिन तुम ये तो बताओ कि इस कैसेट रिकॉर्डर में क्या खास बात थी कि इसके लिए रोशन खान लड़ने मरने पर आमादा हो गया। रात को रोशन खान के आने तक हमें इस किस्से के बारे में कुछ मालूम नहीं था। चंद सानियों तक सोचने के बाद एलन बताने लगा, बात रिकॉर्डर की नहीं, इस कैसेट की थी जो इसमें मौजूद था। रोशन खान का दावा था कि इस कैसेट में अहम मालूमात थी जो हमारे लिए बेशकीमत साबित हो सकती थी। वो भारी मुआवजा लेकर वो कैसेट हमें फरोख्त करना चाहता था। फिर वो कैसेट अपने रिकॉर्डर समेत गायब हो गया। इसी वजह से रोशन खान को वहम हो गया कि हमने मौका पाकर वो कैसेट चुरा लिया है और वो हमसे लड़ने के लिए आ पहुंचा। वो अपने मफरूजा नुकसान पर आतिश ज़ेर पा हो रहा था। हमने भी इसकी खासी दुर्गत बनाई थी। इसने पूरी कथा बताते हुए ये बात बहुत खूबसूरती से छुपा ली थी कि इस कैसेट में हम लोगों की आवाजें महफूज की गई थी। मैंने भी इस बारे में किसी तजस्सुस का मुजाहरा नहीं किया। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इनसे झगड़े के हकायक का एतराफ करा लूं और मैं अपनी इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब रहा था। मैं अपनी मेज पर लौट आया। थोड़ी देर बाद हम बस में सवार होने के लिए उठे तो वीरा बदस्तूर ये जानने पर मुसर थी कि एलन और पीटर से मेरी क्या गुफ्तगू होती रही थी, लेकिन मैंने मुसलसल चुप साध रखी थी। मैं इसे नहीं बताना चाह रहा था कि इन दोनों ने मुझसे क्या एतराफात किए थे। रास्ते की छेड़छाड़ के लिए वो मौजू खासा दिलचस्प साबित हो सकता था। बाहर कोस्टर का इंजन स्टार्ट था। होटल के सामने वाले फुटपाथ पर जमे हुए खून का एक बहुत बड़ा धब्बा दूर ही से नुमाया नजर आ रहा था। शायद रात को मारे जाने वाले बहरे की लाश वहां से उठा ली गई थी और राहगीर एहतरामन फुटपाथ के इस खून आलूद हिस्से से बचकर गुजर रहे थे। रोशन खान ने अपनी कोस्टर की ओट में अगले बम्पर पर पैर टिकाए चंद मुकामियों के साथ बातें कर रहा था। मेरे लिए दिलचस्प बात यह थी कि इसके चेहरे पर भी कई खराशें नजर आ रही थी। मार खाने के बाद गो इसके खदोखाल बिगड़े नहीं थे, मगर वो बिल्कुल ही महफूज मामून नहीं रहा था। गोरों ने अपनी जिस्मानी कमतरी के बावजूद इसे चरके लगाए थे। वीरा ने रोशन खान को कौन आंखियों से देख लिया था, लेकिन बिल्कुल अनजान बनी रही। मैं इसकी मक्कारी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। चंद मिनट बाद सफर का आगाज होता तो वो अपनी अदाकारी जारी नहीं रख सकती थी। होटल के सामने वाली सड़क की हालत बहुत अबतर थी, लेकिन इसमें ताजा उधड़ी हुई वो पट्टियां नुमाया थी जो पिछली रात गश्त पर निकलने वाले टैंक की चौड़ी चौड़ी आहनी जंजीरों ने बनाई थी। मुसाफिरों की गिनती के बाद एलन ने ड्राइवर को आवाज दी। वो अपनी नशिस्त पर आ गया और कोस्टर ने रेंगते हुए अपनी जगह छोड़ दी। मेरी और वीरा की नजरें चार हुई तो मैं अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट पर काबू नहीं रख सका। बिला वजह इतराने की जरूरत नहीं, वो किसी उम्मीद के बगैर गुर्राई। आदमी मुसलसल क्यास आराइयां करता रहे तो हजार में से एक आधा बात दुरुस्त निकल ही आती है। अपनी अलल टेप बातों पर तुम कोई क्रेडिट नहीं ले सकते। एलन ने अपनी ऐनक को मजरूर नाक के सरे पर सरका कर बगौर मेरी तरफ देखा और हैरत से बोला, कमाल है, तुम दोनों में तकरार हो रही है। मेरा ख्याल था कि तुम चारों आंखें बंद करके एक दूसरे की तायद करने के आदी हो। तकरार दो तरफा होती है। तुम देख रहे हो कि मैं खामोश हूँ और वीरा बोल रही है। उर्दू में इसे तकरार नहीं डांट फटकार कहते हैं। हमारी तरफ के मर्द ऐसी बातें सुनने के आदी होते हैं। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में अपना सर झटक कर रह गया। इसी वक्त पीटर ड्राइवर से मुखातब हुआ, जरा कोस्टर इस तरफ से निकाल लो जिधर पिछली रात बम फटा था। सब लोग अपनी आंखों से तबाही का मंजर देख लेंगे। ड्राइवर ने मुड़कर इसकी तरफ देखा लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। अरे तुम्हारे चेहरे पर चोटों के निशान कैसे हैं? वीरा को ड्राइवर से सवाल करने का मौका मिल गया। मामूली चोटें हैं, ड्राइवर बादल नखवास्ता बोला। अंधेरे में सीढ़ियों पर से फिसल गया था। खुदा रहम करे, पिछली रात के अंधेरे में अजीब इत्तफाकात रूनमा हुए हैं। वीरा खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाई। दो आपस में लड़ पड़े, तीसरा सीढ़ियों पर से फिसल गया, चौथा
फौजियों के हाथों मारा गया। अब देखो किसकी बारी आती है। कोई कुछ न बोला। कोस्टर चलती रही। पीटर की हिदायत के बाद इसका रुख गलियों और निस्बतन पतली सड़कों की तरफ था। इन रास्तों पर जा बजा मुकामियों की टोलियां जमा थी। लोग जंगो जदल के साये में जिंदगी गुजारने के बावजूद अचानक रूनमा होने वाली तकरीबी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के आदी नहीं हो सके थे और गालबन पिछली रात के धमाके पर अपने रद्दे अमल का इजहार कर रहे थे। आखिरकार कोस्टर एक चौड़ी सड़क पर पहुंची तो आगे रास्ता बंद था। वहां फौजी गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी और मुसल्लह फौजियों की बारी नफरी पहरे पर मामूर थी। इस बंद रास्ते से आगे मुतअद्दिद इमारत के दरमियान एक गिरी हुई इमारत का मलबा नजर आ रहा था, जिसके कई हिस्सों से धुएं के गहरे बादल उमड़ रहे थे। कोस्टर तेजी से दाहिनी तरफ घूम गई। हमें तबाहशुदा इमारत का गहरा जायजा लेने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि कोस्टर का रुख बदलते ही तबाहशुदा इमारत दूसरी तमीरात की ओट में छुप गई। मैनेजर ठीक कह रहा था। एलन ने अंग्रेजी में मुझे आगाह किया। आज के काबुल टाइम्स ने रात के धमाके की तफसीली खबर छापी है। बम से फ्रेंडशिप हाउस का मरकजी ब्लॉक मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। सरकारी तौर पर किसी जानी नुकसान का एतराफ नहीं किया गया, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कम से कम 200 रूसी फौजी तो इस ब्लॉक में मुकीम थे, हलाक और जख्मी हुए हैं। रात भर एम्बुलेंसें खामोशी से जख्मियों और लाशों को ढोती रही। फ्रेंडशिप हाउस के अहाते से मुल्हिक ग्रेड स्टेशन की तनसीबात तबाह हुई हैं और इससे मुंसलिक 7 सब स्टेशन बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आधा जलालाबाद तारीख पड़ा हुआ है। एलन की जुबानी वो तफसीलात सुनकर मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने खुद किसी अखबार के हसूल की कोशिश क्यों नहीं की। हम इस शहर में मुसाफिर और रात भर के मेहमान थे, इसलिए लाशौरी तौर पर हम मुकामी हालात से कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं रखते थे। इसी वजह से किसी ने अखबारात वगैरह के हसूल की कोशिश नहीं की थी। ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि कोस्टर के किसी भी मुसाफिर के पास कोई अखबार नजर नहीं आ रहा था। दूसरे मुसाफिरों का रद्दे अमल भी हमसे मिलता जुलता ही था। धमाके के बाद रूसियों की फैलाई हुई दहशतगर्दी के बारे में काबुल टाइम्स की क्या राय है, वीरा ने पूछा। इसका कोई जिक्र नहीं था। मुझे हैरत है कि अखबार ने चश्मदीद गवाहों के हवाले से 200 रूसी फौजियों के हलाक या मजरूह होने का जिक्र कर दिया, वरना मैंने सुना है कि रूसी अपनी नाकामियों की हर खबर को सख्ती से दबा देते हैं ताकि इनके फौजियों का मुराल बुलंद रहे। किसी आला मकसद के बगैर लड़ने वालों में यही कमजोरी होती है कि वो नागिहानी मौत से खौफजदा रहते हैं। एलन ने इत्मीनान से कहा। मुझे इस सरजमीन पर रूसियों का अंजाम ज्यादा खुशगवार नजर नहीं आता। इनका अंजाम जो भी हो, यहाँ रहने वाले बरसों अपने जख्मों को सहलाते रहेंगे। मैंने कहा, हाथियों की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले मेंढक इसी तरह पिसा करते हैं। एलन ने बेनियाजी से जवाब दिया। अफगानों ने रूस के खिलाफ अमरीकियों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देकर एक लंबी तबाही को दावत दी है, लेकिन मुझे तो अभी तक यहाँ कोई अमरीकी नजर नहीं आया, वीरा ने सपाट लहजे में कहा। यहाँ अमरीकी फौजी नहीं, इनका सरमाया और हथियार लड़ रहे हैं। सियासत पर एलन की गहरी नजर थी। अमरीकी एजेंट यहाँ इमदादी और रफाही तंजीमों की आड़ में जंग को कंट्रोल कर रहे हैं। जंगी जख्मियों की देखभाल के हर यूनिट में बज़ाहिर बेज़रर से 2-4 अमरीकी मशीनरी नजर आएंगे, लेकिन दर हकीकत वो सब पेंटागन या CIA के तनख्वाहदार हैं। सियासत के अलावा कोई और बात करो। मैंने इसकी बात काट दी। अपने जख्मों को खरीदने से अजियत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ये देखो हमारी दाहिनी सिमत पर किस कदर सीन और सरसब्ज बाग है। जलालाबाद वाले खुश नसीब हैं कि जंग ने अभी तक इनके खूबसूरत बागों को नहीं उजाड़ा है। मायूसी के घूर अंधेरे में जिंदा रहने के लिए इंसान को उम्मीद की हर किरण की तरफ लपकना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम पिछली रात मोमबत्तियों पर झपट रहे थे। अब उम्मीद का नाम लेते हुए डर लगता है। वीरा फौरन 9वें महीने का हवाला दे बैठेगी। एलन मेरे एतराज पर बेमजा होने की बजाय खुश तबी के मुजाहरे पर मायल हो गया। पीटर अपनी जगह छोड़कर ड्राइवर और क्लीनर के करीब इंजन के ढकने पर जा बैठा था। मेरी मालूमात के मुताबिक जलालाबाद से तोरखम तक का रास्ता बहुत खतरनाक था, न ज्यादा तवील। मेरे लिए ये बात नाकाबिले फहम थी कि 100 मील से भी कम मुसाफत तय करने के लिए हम 12 बजे क्यों निकल खड़े हुए थे, जबकि सरहद अबूर करने के लिए हमें हर हाल में अंधेरा गहरा होने का इंतजार करना था। मैंने यही सवाल किया तो एलन ने बताया कि तोरखम जलालाबाद शाहराह पर जब रसद के काफिले रवां होते हैं तो रूसियों से लड़ने वाले गुरीलों के दस्ते इस सड़क को बिल्कुल बंद कर देते हैं और इस रास्ते में सफर करने वाली गाड़ियों को घंटों सड़क से नीचे रहकर इंतजार करना पड़ता है। ऐसी किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए वक्त की गुंजाइश जरूरी थी। इसलिए इसने मुझे ये भी बताया कि वो शाहराह बहुत दुश्वार गुजार नहीं थी, लेकिन फिर भी पहाड़ी रास्तों पर मुतअद्दिद खाइयां और खतरनाक मोड़ होने की वजह
وجہ سے سفر کی وہ رفتار رکھنی ممکن نہیں تھی جو ہموار میدانی راستوں پر ہوتی ہے۔ جلال آباد سے نکلتے ہی بری پہاڑیاں ہمارے سامنے تھی۔ اس لہراتی اور بال کھاتی ہوئی سیاہ سڑک پر مزید چند میل کے سفر کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس راستے پر بے فکری اور تیز رفتاری سے ڈرائیونگ ممکن نہیں تھی۔ 1:30 بجے کے قریب جب سڑک پر دور دور تک ہماری کوسٹر کے علاوہ کوئی اور گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، اچانک فضا میں سائرن کی آواز سنائی دینے لگی جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ بس مارے گئے، اب مصیبت آنے والی ہے، ڈرائیور اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مخالف سمت سے 2 گاڑیاں ایک دوسرے کے برابر میں آتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ چند ہی لمحوں میں ان کی ساخت واضح ہو گئی۔ وہ کھلی ہوئی فوجی جیپیں تھیں جن پر مشین گنیں نصب تھیں۔ دونوں جیپوں کا سرخ رنگ کی روشنی گردش کر رہی تھی۔ انہی میں سے کسی جیپ کا سائرن بج رہا تھا۔ دونوں جیپوں پر بہت سے مسلح افراد لدے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر گول چترالی ٹوپیاں تھیں اور ان کی لمبی لمبی قمیضوں کے دامن ہوا میں تیزی سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ ان جیپوں نے سڑک کی پوری چوڑائی کو جس طرح گھیرا ہوا تھا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ سڑک کو خالی کرانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہماری کوسٹر کو دیکھتے ہی جیپ کے مسلح سواروں نے رائفلیں لہرا لہرا کر کوسٹر کو سڑک سے نیچے اتارنے کے اشارے کرنے شروع کر دیے۔ اس وقت کوسٹر ایک گہری کھائی کے کنارے سے گزر رہی تھی۔ دوسری طرف ناہموار اور پتھریلا میدان تھا۔ دونوں جیپیں برق رفتاری سے ہمارے سروں پر چلی آ رہی تھی۔ ہمارے ڈرائیور نے کوسٹر کی رفتار کم کر کے اسے پتھریلے میدان میں اتار لیا۔ تیز جھٹکوں سے کوسٹر کے سارے مسافر بری طرح ہل کر رہ گئے۔ ہمارے ڈرائیور نے بریک لگائے ہی تھے کہ وہ دونوں چنگاڑتی ہوئی جیپیں زناٹے کے ساتھ ہمارے قریب سے گزر گئیں۔ جیپ پر سوار مسلح افراد وحشیانہ انداز میں چیخ رہے تھے۔ ان میں سے کسی زیادہ جوشیلے شخص نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے ایک فائر بھی کیا جس کی سمت کا شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ ان جیپوں پر کوئی باوردی شخص سوار نہیں تھا۔ سب لوگ باندھ باندھ کے شہری لباسوں میں تھے، مگر ان کے تیور ان کے خطرناک جنگی عزائم کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ جیپیں جتنی تیزی سے نمودار ہوئیں اتنی ہی تیزی سے پیچھے غائب بھی ہو گئیں۔ وہ لوگ جا چکے ہیں، کچھ اور فاصلہ طے کر ڈالو، شاید انتظار کرنے کے لیے آگے کوئی بہتر جگہ مل جائے، میں نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ اس انداز میں میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی مضحکہ خیز بات کہہ دی ہو۔ ایمرجنسی سکواڈ گزرنے کے بعد کوئی گاڑی سڑک پر نہیں آ سکتی۔ چند ثانیوں بعد وہ ناصحانہ لہجے میں بتانے لگا، جب تک کانوائے کے آخر میں چلنے والی فیلڈ وین نہیں گزر جاتی ہمیں سڑک سے نیچے رہ کر انتظار کرنا ہوگا۔ یہ فیلڈ وین کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال ایلن نے کیا تھا۔ اس شاہراہ پر سفر کے ضابطوں سے وہ بھی میری ہی طرح لا علم معلوم ہو رہا تھا۔ کیا اس کی کوئی خاص نشانی ہوتی ہے؟ وہ کوئی بھی وین، جیپ یا گاڑی ہو سکتی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس پر سفید پرچم لہرا رہا ہوتا ہے اور سبز روشنی گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس کے گزرتے ہی راستہ کھل جاتا ہے، ڈرائیور نے بتایا۔ اور فیلڈ وین رسد کے قافلے کے پیچھے چلتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ وہ رسد یا کمک ہی ہو، ڈرائیور نے بے پرواہی سے کہا۔ فیلڈ وین ہر اس کانوائے کے پیچھے چلتی ہے جس کے لیے راستے بند کرائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں تو ویسے بھی حکومت کے باغیوں کا زور ہے۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ کوسٹر کے مسافروں میں بے چینی کی لہر سرایت کرتی رہی۔ متعدد مرد نیچے اتر گئے۔ لوگوں نے ہر طرح سے ڈرائیور کو اکسانے کی کوشش کر ڈالی، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر سفر جاری رکھنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جلال آباد کی سمت سے ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ اس پر کوئی روشنی نصب نہیں تھی، نہ سائرن بج رہا تھا، لیکن قریب آنے پر وہ بھی مشین گن سے لیس کھلی ہوئی جیپ ثابت ہوئی۔ اس پر صرف 4 مسلح افراد تھے اور جیپ کے پیچھے کئی گز اونچا ریڈیو اینٹینا لہرا رہا تھا۔ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے ہیڈ فون پہنا ہوا تھا اور اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ یہ بھی انہی کے ساتھی ہیں اور سڑک کا جائزہ لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ڈرائیور نے بیرا کی اس افسار پر بتایا۔ اصل کانوائے کے گزرنے تک ایسی گاڑیاں آتی جاتی رہیں گی۔ اس وقت پوری سڑک پر صرف انہی لوگوں کا راج ہے، کوئی اور سڑک پر پھٹکنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ پلٹ کر دیکھا تو آگے نکل جانے والی جیپ رکنے کے بعد واپس گھوم رہی تھی۔ سمت بدلنے کے بعد جیپ نے رفتار پکڑی اور ہمارے قریب آ کر سڑک پر ہی تھم گئی۔ اس کا انجن چلتا رہا۔ ڈرائیور کے ساتھ ہیڈ فون والا بھی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ وہ ہیڈ فون سے اپنے دانے کے سامنے آئے ہوئے ماؤتھ پیس میں وقفے سے بولتا جا رہا تھا۔ بقیہ 2 آدمی اپنی رائفلوں سمیت نیچے کود آئے۔ روشن خان ان کی پیشوائی کے لیے سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں نے روشن خان سے ہاتھ ملائے اور چند ثانیوں تک وہیں رک کر اس سے پوچھ گچھ کرتے رہے، پھر کوسٹر کی طرف بڑھ آئے۔ انہوں نے گہری اور عقابی نظروں سے ایک ایک مسافر کا جائزہ لیا۔ افغان مسافروں نے ان سے کچھ گفتگو بھی کرنی چاہی، لیکن وہ خشک لہجے میں مختصر جواب دے کر کوسٹر میں گھس گئے۔ اس
वक्त कोस्टर में सिर्फ औरतें रह गई थी, सारे मर्द नीचे उतरे हुए थे। अपना इत्मीनान करने के बाद वो सादा पोश किसी से कुछ कहे बगैर जीप की तरफ लौट गए। इनके सवार होते ही जीप ने तेजी से खतरनाक यू टर्न लिया और दोबारा तूरखम की सिमत रवाना हो गई। मैं दिल ही दिल में इन लोगों की चालाकी की दाद दिए बगैर न रह सका। मुसाफिरों के बेस में इनके मुखालिफ कैंप के तकरीबकार भी हो सकते थे, जो अपनी जानों पर खेलकर इनके कानवाए को निस्तो नाबूद कर डालते। वो खतरे के हर इम्कान की देखभाल करने के आदी थे और शायद इसीलिए कामयाबी से जंग को तूल देते चले जा रहे थे। वक्त गुजरता चला गया, मुतअद्दिद गाड़ियां आईं और गुजर गईं, लेकिन कारवां न आया। ड्राइवर ने सबको तसल्ली दी कि नामसाद हालात में ऐसी ताखीर होती ही रहती थी। कभी कभार पूरा पूरा दिन इसी तरह इंतजार में कट जाता था। इन दिनों वो कोई नई बात नहीं थी, इसलिए सबको सब्र से काम लेना चाहिए था। राहवारे मशरक अपने दिन भर के सफर से थक हार कर आसमान के मगरबी गोशों की तरफ झुकता जा रहा था। चमकीली धूप में जर्दी का रचाव पड़ने लगा था कि फजा में किसी हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी। फिर वो एव हैकल मशीनी परिंदा हमारी नजरों में भी आ गया। वो सड़क के साथ साथ खासी कम बुलंदी पर प्रवास कर रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि इसकी बुलंदी सिर्फ इतनी रखी गई थी कि इसे जमीन से किसी राइफल का निशाना न बनाया जा सके। वो हेलीकॉप्टर तूरखम की तरफ से नमूदार होकर जलालाबाद की सिमत में गायब हो गया। मैं रोशन खान की दूर अंदेशी का कायल हो गया। इतनी कड़ी देखभाल में कोई फातरुल अकल शख्स ही इन मुसल्लह जत्थों के नाफिज किए हुए ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की हिम्मत कर सकता था। हम चारों दूसरे मुसाफिरों से अलग होकर बड़े बड़े पत्थरों पर जा बैठे। अच्छा ही हुआ कि हम 12 बजे चल पड़े थे। सुल्तान शाह थकी हुई आवाज में कहा, हम दिन के उजाले में आधे से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं। अब बाकिया सफर तय करने के बाद हम सरहद अबूर करने तक कहीं नहीं रुकेंगे। दुआ करो आज की तारीख में सफर का बाकी हिस्सा पूरा करने की नौबत आ सके। वीरा की आवाज से भी इज़्मलाल झलक रहा था। इधर से कोई बहुत अहम या बड़ा कानवाए आने वाला है। तुम किधर की बात कर रही हो? गजाला ने सवाल किया। वो पूरी तरह चाको चौबंद नजर आ रही थी। जाहिर है कि लड़ने वालों के लिए हथियार और बेशतर इमदादी सामान तूरखम के रास्ते ही आता है। वीरा बोली, ये तुम्हारा अंदाजा है, वरना हो सकता है कि आज जलालाबाद की सिमत से कोई कारवां सरहद की तरफ जा रहा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जलालाबाद से पाक सरहद के लिए क्या भेजा जा सकता है? मैं खामोशी से इन दोनों की बहस से लुत्फ अंदोज हो रहा था। लुत्फ अंदोज होते हुए सिगरेट के कश लगाता रहा। तुम भूल रही हो कि रूसियों से छीने हुए हथियारों जखायर की पाकिस्तान में बहुत मांग है। गजाला ने मानी खेज लहजे में कहा, रूसियों से छीने हुए हथियारों के लिए जंगी पैमाने पर मैगजीन हासिल करना आसान नहीं होगा, जबकि बारूदी मैगजीन के लिए हर हथियार लोहे के एक मामूली टुकड़े की तरह हकीर होता है। थोड़े बहुत मैगजीन के साथ ये हथियार आसानी से पाकिस्तान के चोर बाजारों में खप जाते हैं। इन्हें अपने लिए वाफर मिकदार में अमरीकी हथियार और मैगजीन मिलते रहते हैं। तुम बहुत दूर की कोड़ी लाई हो। वीरा बोली, मैंने सैकड़ों ऐसे जंगी वाक़यात पढ़े हैं जिनमें पसपाई के वक्त होशियार कमांडर अपनी तोपें और टैंक तो छोड़ देते हैं, लेकिन गोला बारूद और मैगजीन के जखायर को तबाह कर देते हैं। अपने कैलिबर के गोले के बगैर दुनिया की कोई तोप लोहे का अचार बनकर रह जाती है। तुमने एक जुमले से मेरी आंखें खोल दी है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि शराब के अलावा कोई फिक्रा भी तुम्हारी आंखें खोल सकता है। सुल्तान शाह अचानक बोल पड़ा, इसने आज का पूरा दिन शराब के फाके में गुजारा है। असूलन तुम्हें इस वक्त अंटा गफील होना चाहिए था। यही मेरा कमाल है कि मैं बला नोश होने के बावजूद अल्कोहल की आदी नहीं हूँ। वीरा ने फखर से कहा, मिले तो रोज दिल खोल कर पीती हूँ, ना मिले तो मुझे हफ्तों भी परवाह नहीं होगी। आदि शराबियों से मुझे सख्त नफरत है। इत्तफाक से बड़े भाई का भी यही हाल है। सुल्तान शाह मेरी तरफ इशारा करते हुए तमस्खराना लहजे में कहा, खुद ही देख लो कि कितने इत्मीनान से सूखी सिगरेट चूसे जा रहे हैं। जहन बोझल होने के बावजूद सब ही बेसाख्ता हंसने पर मजबूर हो गए। सूरज अपनी आखिरी सांसों पर था कि फजा में फौजी ट्रकों के इंजनों की बारी और मखसूस गड़गड़ाहट गूंजने लगी। मैं गैर इरादी तौर पर अपने पत्थर से उठकर खड़ा हुआ। फजा में कान लगाने से अंदाजा हुआ कि मुतअद्दिद ट्रकों की वो धीमी आवाजें जलालाबाद की सिमत से हमारी तरफ बड़ी चली आ रही थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।